Okay, good morning, everyone. Okay, so we've almost come to the last portion of this topic. हम इस कोर्स के अंत भाग में आ चुके हैं। So, yesterday we talked a lot about how to minister to a Muslim, how to minister to a Hindu. हमने कल देखा कि कैसे एक मुस्लिम भाई से या हिंदू भाई से हम सुसमाचार कह सकते हैं। Then in chapter 9, we talked about how to witness and demonstrate the power of the Holy Spirit. हमने देखा कि 9वें पाठ में देखा कि कैसे अ, गवाही दे सकते हैं और कैसे हम दिखा सकते हैं प्रभु के बारे में। And chapter 10, we talked about praying for the unsaved. और हमने 10वें पाठ में देखा था जो मसीह में नहीं है उनके लिए प्रार्थना करना। So we saw that, the enemy hinders the work of the gospel. और हम देखते हैं कि दुष्ट जो है परमेश्वर के कार्य को रुकावट डालता है। 3 points we looked at. 3 पॉइंट हमने देखा He था। blinds the minds of people. वो लोगों के मन को अंधा बना देता है। He holds people in bondage. वो मनुष्यों को बंधन में डाल देता है। And he hinders the proclamation of the gospel. और वो सुसमाचार की घोषणा को रोकता है। But God didn't send us, he didn't say go and make disciples and if anything happens, you handle it. और प्रभु ऐसा नहीं कहता कि जाओ शिष्य बनाओ और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम खुद देख लेना। No. We talked about the scriptures where it says God has given us spiritual weapons. और हमने देखा था कि परमेश्वर ने वचन के अंदर से कि परमेश्वर ने हमें अलौकिक औजार दिए हुए हैं। The weapons of our warfare are not carnal, they are mighty in God. और हमारा जो युद्ध का औजार है इस दुनिया के प्रकार से नहीं है। And we saw Ephesians chapter 6 to put on the armor of God. और हमने इफिसियों 6 में देखा था कि अपने कवच को धारण कर लें। Right? So we have to put it on. और हमें पहनने की जरूरत है। We have to fight. हमें लड़ने की जरूरत है। Your brother, your sister cannot fight for you. आपका भाई या बहन आपसे लड़ नहीं सकता। You have to fight your own battles. आप अपना युद्ध अपने आप लड़ना पड़ेगा। Right? So we ended the chapter by talking about exercising spiritual authority. और हमने इस पाठ को खत्म किया था आत्मिक अधिकार को किसे इस्तेमाल करें। Okay, let's go to chapter 11. हम 11वें अध्याय की ओर ध्यान देंगे। Chapter 11 is talking about more of nurturing a new believer. और उसमें लिखा हुआ है हम पढ़ेंगे नए विश्वासी को कैसे पोषण किया जाए। Now there'll be times we will minister to somebody, share the gospel, and they become a believer. और जब एक नए व्यक्ति को हम सुसमाचार सुनाते हैं और वो परमेश्वर में जब आते हैं, now they are like new babies. वो लोग जो है नए जन्मे बच्चों के समान हैं। Now in the natural, if you look at a baby, they are helpless. प्राकृतिक रीति से देखें तो वो बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं वो अपने आप का सहायता नहीं कर सकते। They don't know anything. वो कुछ भी नहीं जानते हैं। You can't take a baby and give them solid food. और हम एक बच्चे को लेकर नए जन्मे बच्चे को लेकर खाना नहीं दे सकते। When I had my first son, मेरा जब पहला बेटा हुआ था, I was 26 years old. मैं 26 साल का था। I didn't know what to do. मेरे को नहीं मालूम था कि क्या करना है। What do you do with the baby? इस बच्चे के साथ क्या करें। But over time we learn. लेकिन समय के बीतते सीखते गए। Right? So a baby, you have to treat it like a baby. और एक बच्चे को एक बच्चे के समान ही देखना है। And as the baby grows, you want the baby to learn more things. और जैसे जैसे ये बच्चा बढ़ता जाता है हम चाहते हैं कि ये बच्चा और अधिक सीखे। The baby begins to say a couple of words. और ये बच्चा जो है कुछ वाक्यों को इस्तेमाल करना The शुरू baby करता है। begins to walk, crawl, and then walk. और बच्चा जो है रेंग के चलता है उसके बाद धीरे चलने की कोशिश करता है। And so what is the responsibility of parents? और वो माता पिता का जिम्मेदारी क्या है? They have to nurture and look after the baby. और उनका ये जिम्मेदारी है कि उस बच्चे का पोषण करें और उसका देखभाल करें। That's the responsibility of parents. वो है जिम्मेदारी माता पिता का।
Now, in the spiritual, आत्मिक रीति से when a person is a new believer, एक व्यक्ति जब एक नया विश्वासी होता he's है, like a baby. वो एक छोटे जन्मे And बच्चे as के a समान। baby, he may not understand, he or she may not understand the, the great revelations that are there in God's word. और वो जो है परमेश्वर के वचन के अंदर जो महान प्रकटीकरण है उसको समझ में नहीं आएगा उसको। You can't give him the meat of God's word. और उसको जो मजबूत खाना है परमेश्वर के वचन का वो नहीं दे सकते। You have to give him the milk. उसको दूध के समान वचन पिलाने की That's why जरूरत है। Paul writes to the Corinthians and he says, you are like spiritual babies. और इसीलिए कोरिन्थ को लिखता है पौलुस और कहता है तुम आत्मिक बच्चों के समान हो। You're not able to eat the meat of God's word. और आप जो है वचन के अंदर की कठिन भोजन जो है उसको खा नहीं पाते हो। So how can you and I help a new believer to mature into Christ likeness? और हम कैसे एक नए विश्वासी को परमेश्वर में परिपक्व होने को सहायता कर सकते हैं। Nobody wants to stay in the same place. और कोई भी उस जिस जगह पर है वहां पर स्थायी नहीं रहना Now, चाहता। whether you like it or not, once you go back to your hometowns, और चाहे आपको पसंद हो या ना हो, एक बार जब आप अपने घर को वापस चले आएंगे, in your spirit you have grown और आपकी आत्मा में जो है आप बड़े हो चुके हो, because you've spent the last 2 months in God's word. क्योंकि आपने बीते हुए 2 महीना जो है इस परमेश्वर के वचन में व्यतीत किया है। Now, what you have learned, जो आपने सीखा, when you apply it, और जब आप उसको कार्य में लेकर then आएंगे, you will see maturity in your life. और तब आप अपने जीवन में परिपक्वता देखेंगे। Okay, so let's look at how you and I can help disciple and mature believers. और हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम शिष्यत्व में और पोषण में एक नए विश्वासी को सहायता कर सकते हैं। Number 1, पहला, the most important one, पहला जो सबसे मुख्य है, teach God's word. और परमेश्वर के वचन को उनको शिक्षा दें। Now, when I say teach God's word, don't go into, if it's a new believer, don't open the book of Exodus. और अगर एक नया विश्वासी है उसका मतलब ये नहीं कहता हूं कि उसको निर्गमन की किताब को ले जाए। Don't go First Kings, Second Kings. It won't help him. और पहला राजा दूसरा राजा की ओर उसका ध्यान न ले जाए, वो सहायक नहीं होगा। Teach about the basics. और जो है तल में जो है निचले तल में है उसको सिखाएं। Teach about foundational truths. उसको नींव जो है, सच्चाई की नींव जो है उसको सिखाएं। So you can teach on faith, आप विश्वास के बारे में सिखा सकते हैं, praise and worship, स्तुति और आराधना, grace, कृपा, mercy, दया, God's faithfulness, परमेश्वर की विश्वस्तता, the Lord's Supper, परमेश्वर का प्रभु भोज, water baptism. जल में बपतिस्मा। So these are all basic things. ये जो है निचली सतह की बात है। But this will hold a strong foundation for a new believer. ये जो है नए विश्वासी के लिए एक मजबूत नींव बन जाएगा। Right now, especially if it's a new believer and he's come to church. अगर एक नया विश्वासी कलीसिया में आया हुआ है, and in the church people are praying in tongues. और लोग जो है कलीसिया में अन्य भाषाओं में आराधना कर रहे हैं, this new believer will be wondering what is happening. He doesn't know. और ये नया विश्वासी जो है चकित रहेगा कि ये कलीसिया में क्या हो रहा है। So it's our responsibility to help them learn that. और हमें, हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि उनको सिखाएं। Even the Lord's table, they won't know what is this? You're giving me something to eat. और वो लोग नहीं जान पाते प्रभु भोज के बारे में भी, वो लोग सोचते हैं क्या है नया कुछ मेरे को खाने के लिए दे रहे हैं। We may know, हम जानते हैं, but they don't know. लेकिन वो लोग नहीं जानते। So we try and we teach them what it means and what is the power in all that we are doing. और हम सिखाते हैं और उनको जानकारी देते हैं कि इस चीजों में क्या सामर्थ है। And then over time they begin to understand. और समय बीतने के साथ वो लोग ये चीजों को समझ जाते हैं। Of course, if you get them planted to the church is also, they're listening to sermons and they're growing in the word. और सही है कि वो जब कलीसिया में आते हैं, एक कलीसिया के भाग बन जाते हैं, तो वो लोग वचन को सुनते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं। Then slowly they begin to grow. और धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू करते हैं। After reading the New Testament,
नया नियम पढ़ने के बाद when they go to the book of Acts, you can read about the missionary journeys. और हम जब वो लोग जब प्रेरितों के बुक किताब में आते हैं, वो सेवकाई का जो भाग है उसमें उसको सीखना शुरू So करते they हैं understand, oh, God used people like this to spread the gospel all across the world. और तब वो समझ जाते हैं कि लोगों को इस प्रकार से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ताकि वो लोग दुनिया भर में मसीह का सुसमाचार फैला And then सके slowly they get interested in the Old Testament. और धीरे धीरे करके वो लोग जो है पुराने नियम में इच्छुक हो जाते हैं And then when they begin to read, they're able to, put both of them together. और जब वो उस चीज को पढ़ते हैं पुराने नियम और नए नियम को उसको एक साथ मिलाना शुरू करते हैं And they begin to grow. You'll see the person growing. और हम तब देखेंगे ये व्यक्ति के अंदर एक बढ़ रहा है The second, this is not in order, but all of this should happen together. ये एक क्रमांक के अनुसार नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें जो है एक नए विश्वासी के जीवन में होना है। The second one is you need to train people in spiritual disciplines. और आपको जो है आत्मिक बातों में उनको अनुशासन में सिखाना है। If it's a new believer, it's not easy to spend time in prayer. और एक नया विश्वासी है तो उसके द्वारा ज्यादा समय प्रार्थना करने में नहीं हो पाएगा Or it's not easy to keep reading the word of God. और उससे ये भी नहीं हो पाएगा कि वो वचन को पढ़ता रहे। They may not understand. वो लोग समझ ना पाए। But we must be there, or leaders should be there to tell them the importance of reading God's word, personal time with God. हम लोग उनके साथ रहना है, नहीं तो अगुवाई करने वाले लोग उनके साथ रहना है ताकि उनको सिखाए कि वचन को पढ़ना जरूरी है। So we teach them the importance of prayer. और हम उनको प्रार्थना का बहुमूल्यता सिखाते हैं। Personal time, not corporate time. और एक लोगों के साथ मिलकर नहीं, अपना निजी समय। And then teach them about godly living. और उनको उसके बाद मसीही जीवन कैसे जीना है वो सिखाएं। I always say this. मैं हमेशा ऐसा कहता हूं, Your personal time with God आपका निजी समय जो परमेश्वर के साथ है will reflect on your ministry. आपके सेवकाई में वो प्रतिबिंब करेगा। The more you spend time in personal time with God, ज्यादा से ज्यादा आप परमेश्वर के साथ निजी समय व्यतीत करेंगे, the more fruitful your ministry will be. और उतना ज्यादा आपका सेवकाई फलवंत हो जाएगा। What is done in the secret, जो आप गुप्त में करते हैं, the prayer and the praying and crying and spending time in God's presence, प्रार्थना, आप परमेश्वर के सामने आंसू बहाना और वचन के साथ रहना, when you go to preach, और आप जब प्रचार करने के लिए जाएंगे, the anointing of the Holy Spirit will be released. और आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है वो बहेगा। Nowadays we've got it upside down. आजकल जो है वो उल्टा हो गया है। We want to see a great ministry, हम एक बड़ी सेवकाई को देखना चाहते हैं, but we don't want to spend time with God. लेकिन हम इच्छा नहीं रखते कि परमेश्वर के साथ समय बिताएं। In the early 1950s, yesterday I was watching a couple of videos. और कल के दिन कुछ वीडियोस में देख रहा था, 1950 के दशक में There was a brother named A.A. Allen. If you go to YouTube and just type in A.A. Allen, you can see some videos. वहाँ उस समय एक भाई था जिसका नाम था A.A. एलन। Right? This is early 1950s, 1960s. वो 1950 और 1960 के दशक की He बात had है। this deep hunger for God. उनके अंदर जो है एक बड़ी भूख थी परमेश्वर So he के used to प्रति, pray, God, give me a revelation of who you are. और वो प्रार्थना करता था, प्रभु आप कौन है करके मुझे प्रकटीकरण कीजिए। And he used to spend days and days, 6 to 7 hours each day praying in God's presence. और वो व्यक्ति जो है 6 से 7 घंटा प्रार्थना में समय बिताता था। Just every day saying, God, I want more of you. और हर दिन, और वो उसकी प्रार्थना ये था कि मुझे आप ज्यादा से ज्यादा चाहिए। And during those days, they used to have tent revival meetings. और उस दौरान में जो तंबू की अभिषेक की प्रार्थना था, बेदारी की प्रार्थना थी, उस समय चलता था। Just like Billy Graham, right? They'll make the tent
thousands of people will come, finish the meeting, they'll go to another place. और जैसे बिली ग्राहम के समय पर तंबुएं बनाए जाते थे, जहां पर एक जगह सुबह आएंगे, वो प्रार्थना करेंगे, वहां खत्म होने के बाद दूसरे जगह पर जाएंगे। So this man used to do that. और ये एलन भी ऐसे ही करता था। But I have never seen a man with confidence like him. और मैंने कभी भी ऐसे एक व्यक्ति को नहीं देखा जिसके अंदर इतना आत्मविश्वास था। All the sick people will write a card, और हर जो बीमार लोग थे एक कार्ड लिखेंगे, prayer card. प्रार्थना कार्ड। The prayer card will say, okay, I am suffering from this disease. मैं इस बीमारी से पीड़ित हूं। And they will come with a stretcher. और वो लोग जो है लकड़ लेकर आएंगे। The blind, the deaf, the mute, all of them will come. और उनको बिस्तर पे लिटा के या कैसे भी हो, अंधे, लूले, लंगड़े सब आते थे। But this man's confidence was at another level. और ये व्यक्ति का आत्मविश्वास था जो था दूसरे एक तल में ही था। He would ask that person, और वो व्यक्ति एलन जो है वो रोगी से पूछेगा, बीमार से पूछेगा, are you ready to get healed? क्या आप चंगे होने के लिए तैयार हो? They'll say, yes, I am ready to get healed. और वो लोग कहेंगे हाँ हम तैयार हैं। Now, after you're healed, what you're going to do? आपके चंगाई के बाद आप क्या करने वाले हो? Now, this man is on the bed for more than 1 year. और ये व्यक्ति जो है खाट पे लेटा हुआ है, 1 साल से ऊपर हो गया। He said, if I get healed, I'll stand up. और वो कहता है अगर मैं चंगा हो जाऊं तो मैं खड़े हो जाऊंगा। Okay, so now are you ready to get healed? और वो पूछता क्या तुम अभी चंगे होने के लिए तैयार हो? And he will ask them, how long do you want to live for? और वो पूछता है कि कितना साल और आप जीना चाहोगे? Are you ready to witness a miracle? क्या आप एक चमत्कार को देखने के लिए तैयार हो? Now, Jesus is right here. He's going to heal you now. और यीशु मसीह यहीं पर है, वो आज आपको चंगाई देगा। In the prayer card, it's written doctors have given him 2 months to live. और उस प्रार्थना कार्ड में लिखा हुआ है कि डॉक्टरों ने उनको 2 महीने का जीवन बोला है। He takes the card, he tears it and throws it. और वो कार्ड उठाता है, उसको फाड़ देता है और फेंक देता है। He says, are you ready? और वो कहता है क्या तुम तैयार हो? Are you ready to serve the Lord? क्या आप परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए तैयार हो? And he'll pray over the people. और वो उन लोगों के ऊपर प्रार्थना करेगा। Get up, take your bed and walk. और वो कहेगा कि अपना बिस्तर उठाओ और चल जाओ। They stand up. वो लोग खड़े हो जाते थे। And they push their own stretcher and go. और वो जो है स्ट्रेचर को धक्का देके चले जाते थे। Now I'm not talking about 1 or 2 people. मैं 1 या 2 व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। Hundreds and thousands of people. 100 से 1000 लोग। Now I always wondered, how is this happening? मैं हमेशा ये सोच में पड़ता था कि ये होता तो कैसे? What kind of confidence? क्या वो आत्मविश्वास था उसके अंदर? He knows that healing is going to come. वो जानता था कि चंगाई होने वाला है। There is zero doubt. उसके अंदर शून्य मात्रा था जो संकोच, संदेह। But I began to read about him. और मैं उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। What is this man? How is he doing this? और ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति कैसे ये कर रहा है? He would spend hours in God's presence. वो घंटों अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में करता था। 5 hours, 6 hours, 8 hours. 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। He's not praying for himself. वो अपने आप के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा था। He's praying for the revelation of God. वो परमेश्वर की प्रकटीकरण के लिए प्रार्थना करता था। It's just, it's something that's a level that I would like to reach. और वो तल है जो मैं भी पहुंचना चाहता हूं। You know, when you see those videos, it's all black and white because there was no color. और वो उस समय ब्लैक एंड व्हाइट वीडियोस थे। You can go to YouTube and see it. आप YouTube में जा सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। He's just so confident. और उसके अंदर इतना आत्मविश्वास है। Confident that God will do it. आत्मविश्वास की परमेश्वर जरूर करेगा। And as believers, we need to get to that place. और विश्वासी होते हमें भी उस तल पर पहुंचने की जरूरत है। Then we connect with Christian fellowship. और उसके बाद जो है उनको मसीही संगति में जोड़ना है। So you help them get into a church, get into cell groups. और हम उनको नए विश्वासी को सहायता करें कि कलीसिया के साथ जुड़े और कोशिका प्रार्थना मंडली जो है उसमें जुड़ जाएं।
then you equip them to serve others. और हम उसके बाद उनको तैयार करें ताकि वो दूसरों की सेवकाई, दूसरों के प्रति सेवकाई कर सके। You train some people, आप किसी व्यक्ति को शिक्षण दें and they will in turn grow up to train other people. और वो धीरे धीरे बढ़कर दूसरों को सिखाने लायक बन It's जाएंगे। like a chain, वो एक चेन के समान है right? It keeps going on. It'll keep continuing. और वो जारी रहता है, कभी रुकता नहीं। Right now, some of you may go back to your home churches. आप अपने स्थानीय कलीसिया में जाएंगे, Whatever you've learned, try to share it with those who are there, who don't know. और जो कोई व्यक्ति है वहां पर जिनको मालूम नहीं है, उन लोगों को ये सिखाएं Help them also to grow. और उनकी भी सहायता करें ताकि वो लोग बढ़ें। When a person becomes a believer, और एक व्यक्ति जब एक विश्वासी बन जाता है, there is an inner witness of the Holy Spirit. उसके अंदर एक पवित्र आत्मा की गवाही होती है। Let's read Romans 8:14 through 16. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 14 से लेकर 16 की ओर हम जाएंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 14 से लेकर 16। Go ahead. Anyone can read? क्या कोई पढ़ के हमें सहायता कर सकता है? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालेकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। For you did not receive a spirit of slavery, क्योंकि तुम्हें जो है दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, but you received the spirit of sonship. और आपको पुत्र होने का अवकाश मिला है, And through that spirit, और उस आत्मा के द्वारा we call our Abba Father. उसको हम पिता, हे पिता बुलाते, परमेश्वर बोलते हैं। Now, just imagine this. आप ऐसा कल्पना कीजिए, In the Old Testament, पुराने नियमों में everyone called God Jehovah, Rapha, Jehovah, Adonai. He was God. और सब लोग जो है पुराने नियम में परमेश्वर को यहोवा, यहोवा राफा, यहोवा अडोनाई करके, और वो बड़े महान परमेश्वर के समान बोलते थे वो लोग। There's so much of honor and respect and dignity to God. बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत ज्यादा आलोकितपन। You know, in the Old Testament, the scribes, those who would make copies of the Old Testament, पुराने नियम में जो वेद पंडित थे, जो लिखा वचन को लिखा करते थे, whenever the name Yahweh comes, और जब कभी वो नाम याहवे आता था, they will go, वो लोग जाते थे, wash their hands, उनका हाथ धोते थे, wash their face, उनका चेहरे को साफ करते थे, come back, आते थे वापस, and then write that word. और उसके बाद वो शब्द लिखते थे। So much of honor. उतना सम्मान। Now Jesus has come into the scene, और अब जो है यीशु मसीह इस चित्र में आया है, and Jesus is teaching his disciples. The और- disciples ask, teach us how to pray. और अपने शिष्यों को यीशु सिखाता है कि कैसे प्रार्थना करें। And Jesus tells the disciples, when you pray, pray like this. और यीशु कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो, Our Father who art in heaven. हे पिता जो हम आप स्वर्ग में हो। See, for us to say our Father is okay. हम अगर कहें हे पिता तो ठीक है, But now the disciples are thinking, who's the Father? अब शिष्य लोग सोच रहे हैं कि ये पिता है तो कौन? You're talking about Yahweh. आप याहवे के बारे में बात कर रहे हो, You're talking about the creator God. आप उस सृष्टिकर्ता के बारे में बात कर रहे हो, How can we call him Father? और किस प्रकार से हम उनको पिता करके बुला You know, सकते हैं? Father is a personal relationship. एक पिता जो है एक निजी संबंध है। If I was a disciple at that time, I would be surprised and shocked. और अगर मैं उस समय होता और मैं उस समय शिष्य, यीशु का शिष्य होता, मैं चौंक जाता और चकित रह जाता। Jesus, how can we call God Father? No. यीशु, हम कैसे परमेश्वर को पिता बुला दे? नहीं। But Jesus says later on, he says, if you have seen me, you have seen the Father. लेकिन आगे आके यीशु बोलता, आगे चल के यीशु बोलता है कि अगर तुमने मुझे देखा है तो मेरे पिता को भी देखा What है। does it say? वो क्या कहता The है? Spirit
inside us is the spirit of sonship. और क्योंकि जो आत्मा मेरे और आपके अंदर है वो पुत्रत्व की आत्मा है। Look at how Jesus discipled his 12. और उसके 12 चेलों को देखे। He first selected 12 people यीशु ने 12 लोगों को चुना and he told those 12 people, you be with me. और कहा कि तुम 12 लोगों से बोला कि तुम मेरे साथ रहो। Wherever Jesus went, he took those 12 people with him. और जहां कहीं यीशु जाता था उनको भी लेके चलता था। They heard him. उनने उनको सुना, They saw him. उसकी बातों को देखा, They saw his character. उसके चरित्र को They देखा, saw his nature. उसके स्वभाव को They देखा, saw his life. उसके जीवन को They देखा, saw what he eats. उसने वो यीशु क्या खाता They heard देखा, what words he's speaking. उसने क्या क्या वचन बोले उसको सुना। Have you ever wondered why Jesus' brothers didn't see anything about him? और आप क्या कभी सोचते हैं कि यीशु के भाई लोग ने इतना कुछ क्यों नहीं देखा? You know, I have 2 brothers. Living with brothers, we all know each other. मेरे पास 2 भाई लोग हैं और उनके साथ रहना मैं सब कुछ जानता हूँ। Even now, you know, even though we've grown old, we always talk to each other. Just now, just speaking to them for more than half an hour. We always talk. We're very close to each other. अभी बड़े हो गए हैं फिर भी हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आधा घंटा बैठ के मैंने बात किया। They're all in different countries, वो लोग अलग अलग देश में रहते हैं but we are still so close to each other लेकिन तब भी हम लोग एक दूसरे से बहुत करीब है because we all grew up together. क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ पले बड़े। But look at Jesus and his brothers. लेकिन आप यीशु के और उनके भाई के बारे में, भाइयों के बारे में, Jesus' brothers are saying, you are saying you're the Messiah. वो यीशु के भाई लोग बोलते तू कहता है कि तू मसीह है, Then मसाया है, why don't you go to the temple and tell everyone, show everyone who you are? और क्यों ना तुम परमेश्वर की मंदिर में जाकर सबको दिखाएं और बताएं। So tell everyone, no, you're the Messiah. Why are you sitting at home? आप घर पे क्यों बैठे हो, जाओ बोलो ना कि आप मसीही हो। Because they themselves didn't believe that Jesus is the Messiah. क्योंकि उनके अंदर भी विश्वास नहीं था कि यीशु ही मसीह है। Own brothers didn't believe Jesus is the Messiah. यीशु के खुद के भाइयों ने विश्वास नहीं But किया, these 12 people meeting Jesus once believed in him. लेकिन ये 12 लोग जो यीशु मसीह के साथ एक बार मिले थे उनने विश्वास कर लिया। He personally taught the 12 disciples beyond what he taught the crowds. और दुनिया वालों नहीं तो लोगों को सिखाने से अधिक निजी तरीके से यीशु मसीह ने सिखाया इन चेलों को। You see, many places in the Bible, there were thousands of people coming to Jesus. और कई वचन में देखते हैं कई जगहों पर कि हजारों लोग यीशु के पास आते हैं। And he taught them. यीशु ने उनको सिखाया। But these 12 people, he took them separately also and taught them. और लेकिन ये 12 लोगों को यीशु मसीह जो है एकांत में लेकर जाकर सिखाता भी है। He corrected them, शिक्षण दिया, he rebuked them, उनको डांटा, and he dealt with the character of each person. और हर एक व्यक्ति के चरित्र के बारे में उसने देखभाल किया, नहीं तो सिखाया, नहीं तो बदला। Remember the brothers of James and John, the brothers of thunder, sons of thunder. और याद होगा आपको याकूब के भाई जिनको थंडर, Yeah, that's okay. Those two brothers. थंडर, ओके, तो वहां पे 2 भाई लोग थे। What did they say to Jesus? उनने यीशु से क्या कहा? Jesus, when you go to heaven, let me be on the left side and one be on the right side. कहा कि जब तू अपने स्वर्ग में सिंहासन पे होगा, हम एक दाहिने तरफ बैठे, दूसरा बाएं तरफ बैठे। Other disciples, so what should we do? और दूसरे शिष्यों ने सोचा हम फिर क्या करें? We are also following Jesus. We also want a place. हम भी यीशु के पीछे हो रहे हैं, तो हमें भी एक जगह चाहिए। And Jesus rebuked them. यीशु मसीह उनको डांटता है। He said, James and John, you two don't know what you're asking for. और कहता है याकूब और यूहन्ना, तुम लोग जानते नहीं हो तुम लोग क्या पूछ रहे। Little did James know that he will be the first one to die out of the 12. और याकूब को उस समय नहीं मालूम था कि वो पहला व्यक्ति होगा जो शिष्यों में से मारा जाएगा। So you look at Jesus, he dealt with their character.
हम देखते हैं कि यीशु मसीह शिष्यों के चरित्र के साथ संबंध बनाकर उसको उनको सिखाता है। Peter was a short-tempered person. पतरस के बारे में देखेंगे, शीघ्र गुस्सैलू व्यक्ति। And he'll first talk, then he'll think. वो पहले बोल देता था, उसके बाद सोचता था। Some of them are there, no? हम में से भी कुछ ऐसे लोग हैं ना, We'll say and then, oh, why I said like this? हम लोग बोल देते हैं, उसके बाद सोचते हैं, अरे ऐसा क्यों बोल दिया। Or we'll get angry and then, oh, why I shouldn't have got angry for this. हम गुस्सा हो जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं, अरे गुस्सा नहीं होना चाहिए था। That's how Peter is. उस प्रकार से था पतरस। I don't know who's Jesus. मैं नहीं जानता यीशु कौन है। What are you talking about? I don't know who's Jesus. तुम क्या बोल रहे हो, मैं नहीं जानता कौन है Third यीशु। time, I don't know who's Jesus. तीसरी बार, मैं नहीं जानता कौन है यीशु। Oh, I shouldn't have said that. अरे ऐसा नहीं करना था मुझे। Now, it's easy to say, but that's the kind of person he was. वो आसान था ऐसा बोलना, लेकिन वो वैसा प्रकार का व्यक्ति था। Sometimes, if you look at that, but look at the other side. Peter walked on water. All the disciples are safe on the boat. और दूसरे भाग को देखेंगे तो पतरस पानी पर चलता है और बाकी चेले जो है नाव में सुरक्षित बैठे हुए हैं। If it's you, tell me also to come. अगर तुम हो तो मुझे भी कहो कि आदेश दो कि मैं आ जाऊं। When Jesus said come, he would have thought, oh, really? जब यीशु ने उनसे कहा होगा पतरस से आ जाओ, तो तब उसने सोचा सच में, And he came. और वो उतर के आ गया। But do you think after going back into the boat, he would have thought, oh, what a request. I shouldn't ask all these. क्या आप कल्पना करते हैं कि पतरस वापिस नाव में चढ़ने के बाद कभी सोचा होगा मैंने क्या पूछा था? He challenged them. उनने पतरस जो है एक चुनौती देने वाला था। Jesus challenged his disciples by giving them opportunities to go and preach. यीशु मसीह उनको चुनौती देता था कि तुम आगे बढ़कर जाओ और प्रचार करो। You know, the perfect example of discipleship. एक उत्तम शिष्यत्वता का एक उदाहरण। Two examples, I'd love to talk about them. दो उदाहरण जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। Jesus and Peter. यीशु और पतरस। Two, दूसरा Apostle Paul and Timothy. अपुस्तुल पौलुस और तिमोथी। Jesus chose this fisherman. और इस मछुआरे को यीशु दिखाता है, Short-tempered, शीघ्र क्रोधी, angry, गुस्सैलू, he denied him. उसका तिरस्कार करने वाला, Always first said things then thought. पहले वो बोलता था उसके बाद सोचने वाला, Very less wisdom. कम ज्ञान। But look at Peter from Acts chapter 3 onwards. लेकिन 2 and 3. पतरस को प्रेरितों के काम 2 से लेकर आगे देखें, It looks like this Peter has been transformed. ऐसा दिखता है कि ये पतरस जो है पूरा बदल चुका है। Here you get the picture of one angry man. यहाँ पे हमारे सामने एक चित्र है जहां पे गुस्सैलू पतरस को देखते हैं, Angry, fearful. डरा हुआ, क्रोधी, गुस्सैलू। Here you get the picture of a man full of God's love and full of authority. लेकिन इस जगह पर हम प्रेरित के काम में उस जगह पर हम देखते हैं एक व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा से भरपूर हुआ। So it's very important for us to raise up the next generation. ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारा कि अगला पीढ़ी जो आ रहा है उसको तैयार करें। You know, something that we always think of in APC. एपीसी में हमेशा हम लोग इस बात के ऊपर विचार करते हैं, When you start something, जब आप कुछ आरंभ करते हो, plan your exit. और आप अपने निकलने के रास्ते को भी तैयार रखें। Why? क्यों? Because we are not going to be here forever. क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। We need new people to come and teach. और हम चाहते हैं कि नए लोग आए और हमें शिक्षा दें। The ministry will not stop. सेवकाई नहीं रुकेगा। APC will keep going on. The ministry will keep going on. एपीसी जो है, सेवकाई जो है चलता ही रहेगा। It's not about a person. वो एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। See, maybe 15 years down the line, I don't know if I'll be here teaching. 15 साल आगे मेरे को नहीं मालूम यहाँ पर मैं खड़े होके पढ़ाऊंगा कि नहीं I पढ़ाऊंगा। want to, but I don't know what God has in store. मेरी इच्छा तो है, लेकिन मुझे नहीं मालूम प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा हुआ है। But we need to teach the next generation. लेकिन हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाना जरूरी Come है। on, you take it up. आप इस जिम्मेदारी को ले लो।
Take up prayer, take up worship. इस प्रार्थना की जिम्मेदारी, आराधना की जिम्मेदारी उठा लो। Train up yourself. अपने आप को अनुशासन में और Put on the सिखाओ। armor of God परमेश्वर का कवच धारण कर लो, and learn and grow. पढ़ो और बढ़ो, And we help them become a leader. और हम उनकी सहायता करें ताकि वो अगुवाई करने वाले बन जाएं। See, somebody did it for me. किसी ने मेरे लिए किया था, And now it's my responsibility to do it for somebody else. और अब मेरा जिम्मेदारी है कि मैं किसी और के प्रति वो करूं। Amen? आमीन। Right? So that's something that should be in our mind. वो चीज होना चाहिए हमारे दिमाग में। How many of us are pastors here? You have your own church? कितने लोग ऐसे हैं जो पासबान की सेवा, पादरी का सेवा करते हैं, अपना खुद का चर्च शुरू किया? 1, 2. Oh, only one. Your husband and wife, right? And your church. इस LP। Yeah. So it's very important that we raise up leaders for the next generation. वो बहुत जरूरी है कि अगले पीढ़ी में से परमेश्वर के दास और दासियों को तैयार करें। So some of the things we do at APC to help raise up the next generation. हम जो कार्य APC में करते हैं ताकि अगले अगुवों को तैयार कर सकें, We teach from the pulpit. हम लोग जो है स्टेज पे खड़े होकर सिखाते हैं। 2 is we show it in our life. हमारे जीवन के शैली के द्वारा उनको दिखाते हैं। And we have life groups all across the city, cell groups. और कोशिका प्रार्थना मंडलियां हर सिटी के चारों तरफ Then we रहेगा। have one-on-one discipleship. एकाएक तरीके से शिष्यत्व का पढ़ाई है। Bible college, बाइबल कॉलेज, foundation class, नींव कक्षा, weekend schools of ministry, हफ्ते का अंत का कक्षा, conferences, pastors trainings, कॉन्फ्रेंस हो या पासबान को तैयार करने की मंडली, youth conferences. जवानों की मंडली। You know, many times, many of them, you know, you go to Central Church, right? आप में से कई लोग जो है सेंट्रल चर्च में जाते हैं। Most of them on the stage were there with us in Children's Church. और जितने आप स्टेज पर देखते हैं अभी, वो हमारे साथ बच्चों के कलीसिया में थे। I have taught some of them in Children's Church. और मैं खुद उनको बच्चों के कलीसिया में सिखाया हुआ No, है। I've not taught. I used to go to lead the worship in the और Children's मैं Church also. सिखाने के लिए नहीं जाता था, मैं उनको वहां पे आराधना लीड करने के लिए जाता था। 3 years, 4 years old they were. उस समय वो लोग 3 या 4 साल के थे। See how they've grown up, देखें वो किस तरीके से बढ़ चुके हैं। leading worship in the church. आज वो कलीसिया में आराधना की अगुवाई करते हैं। So we must provide these opportunities, help them to grow. और हमें जो है इन लोगों के सामने नए नए मौके देने जरूरत है, उनको बढ़ाने की जरूरत है कलीसिया के अंदर। Now, just because they want to join the worship team doesn't mean they just join. और आपका इच्छा है कि आप आराधना की टीम में जुड़ना है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप जुड़ जाओ। So we have a lot of trainings that happen before that. उस टीम में जुड़ने से पहले बहुत सारी ट्रेनिंग होता है। And even we have youth, the worship leaders meeting, we have worship members training, and we teach from God's word. हम परमेश्वर के वचन से सिखाते हैं उनको। आराधना करने वालों की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है, आराधना करने वाले की प्रार्थना मंडली होती है। So we continuously help each other to grow. हम एक दूसरे को बढ़ने में निरंतर सहायता करते रहते हैं। So in your towns and your villages, आपके शहर में और आपके गांव में look at, when you identify people, look at them and take them and give them opportunities to grow. और आप अपने गांव में या शहर में ढूंढें, ध्यान दें, देखें और वैसे लोगों को चुनकर उनको मौके दें और उनको तैयार करें। Right? One of the mistakes we do in Christian ministry is if somebody makes a mistake, he's not good. और हम सबसे बड़ी गलती क्या सेवकाई में करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने गलती कर दिया तो हम लोग ये अंततः आ जाते हैं कि वो ठीक नहीं है। Now, I have made hundreds of mistakes. मैंने 100 से भी ज्यादा गलतियां की हैं। The first time I was asked to preach, पहली बार जब मेरे को प्रचार करने के लिए बोला गया so था, excited. मैं बहुत उत्तेजित था। And
Finally, I'm getting an opportunity to preach in church. अंततः मुझे एक मौका मिल गया कि मैं चर्च में खड़े, कलीसिया में खड़े होकर प्रचार कर लूं। So I had the notes. मैंने नोट तैयार कर I लिया spent more than 1 week preparing for everything. और एक हफ्ते से ज्यादा मैं उसको तैयारी करने में लगा हुआ था। And on that Sunday, I went. और मैं उस रविवार को जाता हूं, And when I went there, everything was okay. But the Sunday, when I went and I sat there, और सब कुछ सही था। मैं वो रविवार को उधर जाता हूं और वहां जाके बैठता हूं। I made one mistake. मैंने एक गलती कर दिया। I saw the people. मैंने लोगों को देखना शुरू कर लिया। I got so scared. मैं बहुत डर गया And then I went up to preach, और मैं प्रचार करने के लिए खड़ा होता हूं। and my teacher is sitting there. मेरे शिक्षक लोग जो है वहां पर बैठे हुए हैं। Pastor Ashish was sitting there. पास्टर आशीष बैठे हुए हैं वहां पे। Everything is forgotten. जो कुछ था सब कुछ भूल गया। The mic is shaking. माइक जो है हिल रहा है Then I'm testing, is it working? और मैं टेस्ट करने में लगा हूं ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। So nervous. और मेरे अंदर जो है घबराहट। You know that there was a fan right on top. और मेरे सिर के ऊपर एक पंखा था। I forgot to put something on the paper. मैंने पेपर के ऊपर कुछ रखने भूल गया Papers all fell down. और सारा पेपर जो है नीचे गिर गया। Pastor took the papers and gave. He said, "Continue, Paul." पास्टर जी जो है आशीष पास्टर वो पेपर को सब लेकर मेरे को देते, बोलते आगे बढ़ो। And then I started preaching. और मैं प्रचार करना शुरू किया। You know, when you start bad, the whole thing is going to end up bad. और जब हम खराब तरीके से शुरुआत करते तो सब कुछ खराब तरीके से ही हो जाता है। Now, I had prepared for at least 45 minutes to 50 minutes. और मैंने 45 से 50 मिनट का प्रचार तैयार किया था। I finished in 20 minutes. मैंने 20 मिनट में खत्म कर दिया। What to do? करूं क्या? I'm so nervous. I said, "Okay, let's close with a benediction." मैं घबरा गया था इसलिए मैंने प्रार्थना करके खत्म कर दिया। So embarrassed. मैं बहुत लज्जित हो गया I था thought, this is not my cup of tea. और मैंने सोचा कि ये जो है मेरा चाय का प्याला नहीं है, हा? मेरे बस का नहीं है, Yeah, ये मेरा बस का नहीं है. बस का नहीं है। Okay? Yeah. मेरी काम की चीज नहीं. Just to make you happy. Okay. Then I thought I will never get an opportunity. और तब मैंने सोचा कि मुझे कभी भी मौका नहीं मिलेगा। Next Sunday, I was again preaching. अगला संडे फिर से मैं प्रचार कर रहा हूँ। Now, this time, I made some points. लेकिन इस समय कुछ पॉइंट मैंने तैयार कर लिया। First thing, keep something. पहला, नोट्स के ऊपर कुछ ना कुछ वेट रख दूं। Two, दूसरा, don't look at anybody. किसी को मत देखो। 3, 3, whatever you prepared, try to share everything you prepared. और जो कुछ तैयारी किया वो सब कुछ तुम बांट दो लोगों के बीच में। 4, 4, preach the sermon at least 10 times before you go on Sunday. और 10 बार मिनिमम संडे को जाने से पहले उस प्रचार को प्रचार करो। And most importantly, ask God to touch people's heart. और सबसे मुख्य चीज प्रभु से मांगे कि प्रभु लोगों को आप छू लेना। So the second time I went on Sunday, और दूसरी बार जब मैं रविवार को जाता हूं, I didn't do all this. मैंने ये सब नहीं किया। I went मैं गया, and I started to preach. मैंने प्रचार करना शुरू किया। And I didn't think about other things, all of that. मैंने दूसरे विषयों के बारे में सोचना नहीं So किया। I learned from my mistakes. मेरे गलतियों से मैंने सीखना शुरू And किया। so there will be times when people you are mentoring or teaching, they will make mistakes. ऐसा समय आ सकता है कि जिन व्यक्तियों को आप तैयार कर रहे हो, सिखा रहे हो, उनसे गलती हो सकता है। Be patient with them. उनके साथ सहज से रहें। Right? So let's get into chapter 12. How do we overcome some of the practical challenges that we may face? 12वां पाठ की ओर जाएंगे हम लोग, जहां पर देखेंगे कि चुनौतियां जो होते हैं उसको हम कैसे उसके ऊपर कैसे जा सकते हैं। Number 1, there will be threats, persecutions, abandoned from family. और वहां पर होता है कि पीड़ाएं होंगी आपके विरुद्ध में, धमकियां होंगे, आपको तिरस्कार कर दिया जाएगा।
परिवार के वहां से। In ministry, there will be a lot of threats. और सेवकाई में कई प्रकार के धमकियां हो आएंगी, There will be persecution. वहां पर पीड़ाएं होंगी, And many of you have gone through those persecutions. और आप में से कई लोग जो है उसमें से गुजरे हुए लोग हैं। And then there will be times when family and friends will desert you. और ऐसा भी अवस्था आएगा जहां आपके दोस्त और परिवार आपको तिरस्कार कर देंगे। And this is a common thing we see all through the scriptures. और ये जो है साधारण बात है जो वचन के अंदर से हम देखते रहते हैं। But how can I overcome this persecution and threats and loneliness? और किस प्रकार से मैं ये धमकियों को, पीड़ाओं को और तिरस्कार को, अकेलापन को आप देख कर मतलब मुकाबला इसके साथ कर सकता हूं? What we can do is, number one, we take refuge in God's word and in God's presence. पहला जो कर सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन पर आश्रित हो जाएं। In the book of Acts, when the believers were threatened with persecution, प्रेरितों के काम में जब शिष्य लोग जो हैं या विश्वासी लोग जो हैं धमकाए गए थे वचन के कारण से, they said, Lord, consider their threats, और उन लोगों ने बोला, हे परमेश्वर, उनके धमकियों को ध्यान दे, but stretch out your hand लेकिन आप अपने हाथों को बढ़ाएं, and let there be healings and supernatural miracles. वहां पर चंगाई और अलौकिक चमत्कार होने दो। And so one thing that we can do is, God, I take refuge in you. और एक चीज हम कर सकते हैं, प्रभु, हम आप पे आश्रित होते हैं, But you stretch out your hand आप अपने हाथों को बढ़ाएं, and you bring the supernatural into this place. और आप जो है अलौकिक बातें इस जगह पर लेकर आए। Some of the other practical challenges are preventing them from going to a local church. स्थानीय कलीसिया में जाने से उन लोगों को रोकना, Meaning there'll be times when people will stop others, especially new believers, from going to a church. ऐसे अवस्थाएं आते हैं जहां पे नए विश्वासियों को स्थानीय कलीसिया में जाने से लोग जो है रोक सकते हैं। And there's only one believer in the family. एक ही विश्वासी है परिवार के अंदर से। Many families, they normally agree, okay, do what you want. कई परिवार जो हैं मान जाते हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो, But there are some families who say, no, you cannot go to church. और लेकिन कुछ परिवार होते हैं ऐसे बोलते हैं कि ना, तुम नहीं जा सकते कलीसिया। Right? So what do we do in those kind of situations? उस प्रकार के परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? See, we need to honor our parents, honor our family. हमें जो है अपने माता पिता, हमारे परिवार का सम्मान करना है, But we must also be obedient to God. लेकिन हमें उसी समय परमेश्वर के बातों का भी आज्ञा मानना है, And it's also our responsibility to grow in the things of God. और परमेश्वर के बातों में बढ़ना भी हमारा जिम्मेदारी है। So how can we overcome this challenge? और किस प्रकार से इस चुनौती के ऊपर हम बलवंत हो सकते हैं? You have to see what takes priority. और हमें ये देखना है कि प्रथम स्थान क्या है। As a believer, my priority is to spend time in church, spend time in the presence of God. मेरा एक नए विश्वासी होते मेरा मुख्य प्रथम जिम्मेदारी है कि ज्यादा मैं परमेश्वर के वचन के साथ, प्रार्थना के साथ और कलीसिया के साथ अपना समय को व्यतीत करूं। So you have to make that choice. वो चुनाव आपको करना है। You have to say, no, I want to go. आप कहते हैं कि आप मुझे जाना है, I want to go to church. मुझे कलीसिया जाना है, But it's not because I want to go against your word, but it's because I want to honor God. और मैं आपके आज्ञा के विरोध में नहीं जाना चाहता, लेकिन परमेश्वर के को मैं सम्मान देना है, इसलिए जाना चाहता हूं। Right? So it may not be easy, especially in the family. आपके परिवार के अंदर ये आसान नहीं होगा। See, if we look at the example in the book of Nehemiah. नहम्याह की किताब में अगर उदाहरण से देखेंगे, Now the walls of Jerusalem is broken down, the gates are burned. और जो यरूशलेम की दीवार जो है टूट चुकी है और किवाड़ जल चुके हैं। Now Nehemiah is going to the king. और नहम्याह जो है राजा के पास जाता I'm है। cutting the story short. मैं उस कहानी को संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। The king asked Nehemiah, why is your face so low? और राजा पूछता है कि हे नहम्याह, तेरा चेहरा उतरा क्यों है? Oh, the gates have been burned down and my city is in ruin. और वो कहता है मेरे राज्य का द्वार जल चुका है, दीवारें तोड़ गिराए गए हैं। So you know what Nehemiah asked?
मालूम है आपको नहमिया ने क्या पूछा? Nehemiah asked the Persian king और पर्सिया राजा को नहमाया पूछता है for letters, खत, for wood, लकड़ी for plumbing line, और जो मिस्त्री के काम के लायक and for people. और लोग, And he's asking the Persian king to pay the bill for all of that. और पर्सिया राजा को बोलता है कि ये सारा खर्चा जो है आप उठाओ। And the Persian king agrees to do it. और पर्सिया राजा जो है मान जाता है। So in our context, हमारे परिस्थिति में it's like maybe, some other Hindu activists come and break the church. और कोई हिंदू विरोधी जो है आकर चर्च तोड़ देता है, You ask them to rebuild the church and give it. और हम उन लोगों के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे कलीसिया को वापस तुम खड़ा करके दो, And they do it. और वो लोग आपके लिए That कर is देते हैं। called the favor of God. उसको कहते हैं परमेश्वर की सहमति या परमेश्वर की सहायता। So in these situations, और इस परिस्थितियों में you pray for the favor of God. परमेश्वर की सहायता को पूछे। Whoever is preventing you, जो कोई आपको रोक रहा है, whoever is stopping you, जो कोई आपको रोकने की the कोशिश कर रहा favor of God will turn against. है, परमेश्वर का हित, परमेश्वर का सहायता उसको बदल देगा। Amen? आमीन। All right, let's take a break. We'll come back and continue. ब्रेक लेंगे 10:40 को, 10:40 को वापस